Welcome to Physics Open House. Dear students, today we will discuss the following points. Number 1 is specific of a solid or liquid. Number 2, thermal capacity. Number 3, water equivalent. Number 4, principle of calorimetry. Then latent heat, fusion, latent heat of vaporization, and numerical on latent heat, and then Cp and Cv, why Cp greater than Cv, and formula Cp minus Cv R upon J. So let us start from specific. Total amount of heat supplied to a body is directly proportional to mass of the body and rise in temperature. Therefore, delta Q total heat is equal to mc delta T. M is the mass of the body, C is the specific heat, and delta T is the rise in temperature. Unit joule per kilogram per Kelvin in CGS, calorie per gram per degree C. Next is thermal capacity, unit dimension, thermal capacity MC, delta T को 1 कर दो तो heat delta Q is equal to MC. MC is the mass of the body and specific heat, the product of M and C called thermal capacity. Dimension joule per Kelvin or calorie per degree C. What is water equivalent? Unit dimension. Mathematically, formula for thermal capacity and water equivalent is same. M into C. M is the mass. C is the specific heat. Or definition is it is equal to the mass of the water which absorb emit same heat as is done by the given body or same rise in temperature or fall in temperature. What is the principle of calorimetry? Heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body. This is for numericals. What is latent heat of fusion? फ्यूजन का मतलब होता है आइस का मेल्ट होना. व्हेन आइस मेल्ट तो हीट सप्लाई कहाँ से आती है? बिकॉज टेम्परेचर ऑफ आइस भी जीरो होता है और मेल्ट होने के बाद पानी का टेम्परेचर भी जीरो रहता है, लेकिन स्टेट चेंज हो जाती है. तो इसको हिडन हीट भी कहते हैं, इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं, लेटेंट हीट. अब इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट to convert 1 gram of ice at 0 degree C into 1 gram of water at 0 degree C. It is nearly equal to 80 calorie per gram. This latent heat of fusion, again the definition, it was definition of fusion, now the definition of vaporization. Latent heat of vaporization, it is the amount of heat required to convert 1 gram steam 1 gram 100 degree boiling water into 1 gram steam at 100 degree. No change in temperature, but the state changes. It is nearly 540 or 536 calorie per gram. So the calculation you can understand by the following example. You are given 10 gram ice at minus 10 degree C. इसको कन्वर्ट करना है 10 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सी. सो बिफोर कन्वर्जन लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आइस टू वाटर, आइस टू 0 डिग्री आइस, 0 डिग्री आइस टू 0 डिग्री वाटर, 0 डिग्री वाटर टू 100 डिग्री वाटर, 100 डिग्री वाटर 100 डिग्री स्टीम. So let first in first step it is Q1, second Q2, third Q3, fourth Q4. Q1 is equal to mc delta T. M आपको गिवन है 10 ग्राम, C स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 होती है. डेल्टा T माइनस 10 से 0 तो 10 डिग्री हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहला आंसर आ गया Q1. Q2 के अंदर 0 से 0 स्टेट चेंज हो रही है, इसलिए ml फॉर्मूला लगेगा. M मास 10 ग्राम है, लेटेंट हीट 80 बताया था मैंने, तो 10 इंटू 80 लगा दो,
दूसरा आंसर आ गया। तीसरे में फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0 से 100, तो एम सी डेल्टा टी लगेगा। एम 10 ग्राम, सी 1 होती है और डेल्टा टी 1000 कैलोरी ये हो गया। कैलोरी में लिखना है आपको क्योंकि ग्राम में दे रखा है। लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप के अंदर अगेन एम एल लगाना है। पहले स्टेप में भी एम सी डेल्टा टी, दूसरे में एम एल, तीसरे में एम सी डेल्टा टी और चौथे में फिर एम एल। तो एम एल एम मास 10 ग्राम, एल 540 या 536 जो भी आप लेंगे, जो भी गिवन होगा से मल्टीप्लाई करेंगे, चारों आंसरों को ऐड करेंगे, इससे आपका ये निकल जाएगा लेटेंट हीट का क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज सी पी एंड सी वी। सी वी का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, सी पी का मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो डेफिनेशन ही लिख सकते हैं, ये गैस के लिए होती है और स्पेसिफिक हीट सॉलिड और लिक्विड के लिए होती है। बाय डेफिनेशन सी वी अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 gram of a gas through 1 degree C at constant volume is called CV। इसी को दोबारा बोलते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको CP कहते हैं। जब CV वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कहाँ जाती है, इंटरनल एनर्जी मीन्स टेम्परेचर बढ़ाती है बॉडी का, इसलिए सारी हीट काइनेटिक एनर्जी कहिए या इंटरनल एनर्जी कहिए या टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है तो वॉल्यूम तो एक्सपेंड होगा, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई जो भी होगी उसका एक पार्ट तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा मीन्स टेम्परेचर बढ़ाएगा, और रिमेनिंग पार्ट जो है टू डू वर्क अगेंस्ट द एक्सपेंशन, प्रेशर के खिलाफ, प्रेशर को मेंटेन रखना है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है तो आपको प्रेशर के खिलाफ वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए CP ज़्यादा होती है CV से। और इनका ये रिलेशन है CP माइनस CV इक्वल R अपॉन J। लेटर कंसिडर 1 मोल गैस filled in a cylinder filled with a frictional piston on 1 mole of the gas contained in the, if you heat it to raise the temperature, so amount of heat supplied at constant pressure is dq dash is equal to m means 1 mole into Cp into delta T. Amount of heat supplied at constant volume is equal to m1 Cv into delta T plus work done dW is equal to PdV is equal to RdT, dt सब में से काट दो, Cp माइनस Cv is equal to R अपॉन J। ये आपका आ गया मेयर्स फार्मूला। अगर आप लिखते हैं CP माइनस CV इक्वल टू R तो आंसर जूल में होगा। अगर आप लिखते हैं CP माइनस CV इक्वल टू R अपॉन J, दिस आर इज गैस कांस्टेंट कैपिटल। अगर आप लिखते हैं CP माइनस CV R अपॉन J तो कैलोरी में होगा। J क्या है, कैलोरी कन्वर्जन फैक्टर है, 4.18 जूल, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। इसके बाद हमने आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आज इस के अंदर इतना ही सफिशेंट है। इसके बाद नेक्स्ट में आपको न्यूमेरिकल देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।